थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट। पेज नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 9। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, पे अटेंशन प्रॉपरली। A coordinate we have a h and -6, B coordinate we have a 2 and 3, and C coordinate we have a -6 and k are the coordinate vertices of a triangle whose centroid is a G, 1 and 5. Find the h and k. I am drawing the diagram. Yes, I am drawing the diagram. Pay attention. Question number, page number 116. Page number 116. Question number 9. Yes, I am drawing the diagram ABC. A coordinate we have a 6, h and 6. A coordinate we have a h and -6. B coordinate we have 2 and 3. C coordinate we have a -6. Okay, then centroid point. See, how can I get the centroid point? See, M is the midpoint of BC. I joined this line, 2 point AM. N is the midpoint of AC. I am joining this line, and L is the midpoint of AB, and I am joining this line. And that intersection point we called as G, centroid point. We called as G. ठीक है, गर्दी हो जाएगा। कहाँ पे गर्दी हो जाएगा बेटा? ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। ठीक है, तो इसको मीडियन भी बोलते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियन, it is called as G and also called as centroid. Coordinate of centroid point we have 1 and 5. बोलो, मैं अज्यूम कर लेता हूं, देखो कैसे। Yes, let A coordinate h -6, yes, x1 y1. B coordinate we have 2 and 3, x2 y2. C coordinate we have -6 and k, x3 y3. G coordinate we have 1 and 5, and I am giving the name x and y. बोलो बराबर है? Are you understanding this? A पॉइंट को मैंने नाम दिया x1 y1, B पॉइंट को नाम दिया x2 y2, C पॉइंट को नाम दिया x3 y3, एंड सेंट्रोइड पॉइंट को नाम दिया है बेटा x और y. As per the centroid formula,
as per the centroid formula, okay, as per the centroid formula, first क्या है हमारा centroid formula? x is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3. Why we have, are you understanding this centroid formula? How it is written? y1 plus y2 plus y3 upon 3. All value we have, help me, centroid जो point है उसको 1 and 5. X value we have a 1, y value we have a 5. बेटा समझ में आ रहा है? G point है ना, उसका वैल्यू है 1 and 5. Then x1 वैल्यू we have x1 x2 x3. क्या है बेटा x1 वैल्यू क्या है? बोलो h है, x2 2 है और x3 -6. h plus 2 plus -6 क्या लिखेंगे? h plus 2 plus -3 upon 3. y1 वैल्यू क्या देखेंगे? y1 -6, y2 3 and y3 k. -6 3 and k. तो यहाँ पे लिखेंगे -6 प्लस क्या बोले थे बेटा? y2 3 and k. y3 value we have a k. Are you understanding or not? Pay attention properly. If I take a 3 to opposite side, it comes in multiplication form. h 3 minus 2, we have a -1. 3 plus 1 is equal to h. So my answer h is equal to 4. नहीं आ रहा है? हेलो, वापस देख लेंगे एक बार. x की वैल्यू क्या है? 1 ही है ना. ओके, सेंट्रॉइड पॉइंट. x वैल्यू भी है वो 1. वापस चेक कर लेंगे. x1 वैल्यू we have a h, x2 वैल्यू 2, x3 वैल्यू -6. कितना है? -3 नहीं है. x3 वैल्यू क्या है? -6. आई एम राइटिंग हियर -6. चलो बोलो. तो हियर वी हैव अ 4, -4 and -4 become +4. So my answer h is equal to 7. बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? This part, h value I get here. Now y value 5 into 3. 3 डिनोमिनेटर में है, अपोजिट साइड गए तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म. -6 plus 3, we have a -3 plus k. 15 plus 3, we have a k, और k is equal to 18. ओके, चलो ये समझ में आया सम? वी कंप्लीट द सम हियर. बोलो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. टेक 1 or 2 minutes and if you are not understanding then tell me. ठीक है? हेलो बेटा, जूम करूं? ये देखो, ये तो हमने क्वेश्चन में से ही लिखा है बेटा. फिर सब वैल्यूज रख दिए फॉर्मूला में and I get the answer.
तो हम क्या लिखेंगे, हाँ h and k वैल्यू, माय फाइनल आंसर। h is equal to 7, k is equal to 18। चलो, कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट सम। बेटा कुछ बोलना है आपको? हैव यू अंडरस्टूड दिस सम? बोलो। नो रिस्पॉन्स। यस, नो। सर आगे पढ़ाओ। नेक्स्ट सम। यस। ऑल प्रेजेंट, ऑल प्रेजेंट। बेटा कुछ पूछना है आपको? कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट सम? चैतन्य, शिवम, सजिया खान। यस सर। ओके, समझ में आया ना? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सम। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट trisection of the segment AB with A 2 and 7 and B -1 and -4 and -8। देखो, एक पॉइंट आपको याद रखना है ये सम में, whenever you have a word trisection then you have to take a 2 point। देखो, एक पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, वैसे हमें याद रखना है क्वेश्चन नंबर 10 में। ओके, कौन सा वर्ड है बेटा? ट्राइसेक्शन। टेक 2 पॉइंट। हाउ मेनी पॉइंट? टेक 2 पॉइंट। yes, we have a 2 point AB and I want to do 3 equal part। how many equal part I want to? 2 equal part, 3 equal part। I am taking a 2 point here, P and Q। बोलो 3 पार्ट हो गए कि नहीं हो गए, चेक करो। one segment is there, AB। I want to do 3 equal part। बेटा इक्वल पार्ट है, मैंने मेजरमेंट नहीं लिए है। हाँ, ऐसे बोलना नहीं सर पी क्यू बड़ा है, तो ऐसे नहीं, खाली सिंपल ट्राइसेक्शन। आई हैव अ कोऑर्डिनेट ऑफ ए, यहाँ पे लिखता हूं लेट ए कोऑर्डिनेट वी हैव अ 2 and 7 is equal to x1 y1। b coordinate we have 6 and minus, b coordinate we have -4 and -8। this is x2 y2। बोलो समझ में आ रहा है आप लोग को, क्या नहीं आ रहा है? आई वॉन्ट p coordinate and q coordinate question mark। देखो p coordinate we have a question mark, here also question mark, and a coordinate we have 2 and 7 x1 y1। yes, b coordinate we have
-4 एंड माइनस, बेटा कुछ रॉन्ग लिखूं तो बोलना, हाँ, कोई बताते नहीं हो। यस, x2 y2। इतना समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है बोलो। क्वेश्चन में से देखकर इतना ड्रॉ कर सकते हो आप? हाँ सर। यस, ओके। अभी देखो बेटा, ये वन पार्ट है, ए भी वन पार्ट है और पी भी है ना, टू पार्ट है। देखने से समझ में आता है बेटा, ए पी वन पार्ट है। आई विल राइट हियर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1/2, yes, is equal to m upon n. Therefore m is equal to 1 and n is equal to 2। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? Can I Yes. repeat? Can I repeat? देखो, this is one part and this pb is a two part। yes, मैंने पहले ही बताया 3 equal parts। ap is a one part and pb is the two part। so ap upon pb is equal to 1/2। first part is called as a m and second part is called as a n। so m is equal to 1 and n is equal to 2। yes, p is the, कौन सा पॉइंट है बेटा? p is the डिवाइडिंग पॉइंट। इसको इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवीजन। इसको मैं x और y ले लेता हूं। लेट p पॉइंट इज इक्वल टू x एंड y। सेक्शन फॉर्मूला, ध्यान दो बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोल रहा है? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y is equal to my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बेटा ये फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है? क्या आज ये याद आया? अभी खत्म होने आया है बेटा चैप्टर, फॉर्मूला अभी आना चाहिए। यस, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी वैल्यू बोलेगे बेटा, एक्स वैल्यू क्या है? आई डोंट नो। एक्स वैल्यू आई डोंट नो। m वैल्यू वी हैव 1। x2 वैल्यू, x2 वैल्यू बताओ, चलो x2 वैल्यू -4। n value we have a 2। x1 value we have a 2 upon 1 plus 2। बेटा समझ में आ रहा है ना ये वैल्यू रखने का? पहले फॉर्मूला आएगा तो वैल्यू रख सकोगे ना। कुछ डाउट है बेटा वैल्यूज रखने में? हेलो स्टूडेंट, हैव एनी डाउट? यस, इसको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ, बाद में y वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 1s are 4, 2 2s are 4 upon 3। so 0 upon 3, 0 upon 3 means 0। I get the x value 0। बोलो समझ में आ रहा है? नाउ y कोऑर्डिनेट में देखेंगे। गिव मी द वैल्यू। m वैल्यू वी हैव अ 1, y2 वैल्यू वी हैव अ -8, n वैल्यू वी हैव अ 2, y1 वैल्यू वी हैव अ 7 अपॉन m plus 1, m plus n, तो 1 plus 2 3, -8 plus 14 divide by 3, 14 minus 8 6, 6 upon 3 we have a 2। बोलो ये समझ में आया?
मुझे कौन सा पॉइंट कोऑर्डिनेट मिल गया बेटा? पी कोऑर्डिनेट मिल गया। पी कोऑर्डिनेट वी हैव अ 0 and 2। बोलो बेटा समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? बोलो। यस हाँ, कौन सा फॉर्मूला लिया बेटा? सेक्शन फॉर्मूला से मैंने पी कोऑर्डिनेट फाइंड किया। अभी सेकंड पार्ट अभी मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए बेटा? क्यू कोऑर्डिनेट। तो मैं लिखूंगा क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पीबी। क्या लिख रहा हूं ध्यान दो। फ्रॉम द डायग्राम कैन आई राइट लाइक दिस? क्यू पॉइंट is the midpoint of segment। बोलो क्या है? वापस देखो, सेगमेंट पीबी। चलो बेटा क्यू कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई आई डोंट नो, क्वेश्चन मार्क। अभी क्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। पी कोऑर्डिनेट वी हैव अ 0 and 2। आई एम गिविंग द नेम x1 y1। b coordinate we have -4 and -8, and I am giving the name x2 y2। बोलो ये समझ में आया इतना? क्वेश्चन रीड करो। पी पॉइंट मैंने फाइंड कर दिया। आई वांट क्यू कोऑर्डिनेट। डायग्राम में देखो बेटा, क्यू कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी। बी कोऑर्डिनेट भी है x2 y2। पी कोऑर्डिनेट को x1 y1 नाम दे दिए है। अभी मैं क्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूं। बोलो एज पर मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, इजी है मिड पॉइंट फॉर्मूला। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यस बोलते जाइए बेटा, x1 क्या है? बोलो x1 क्या है? 0। x2 -4 अपॉन 2। -4 अपॉन 2, what will be the answer? -2, 2 2s are 4। yes, y is equal to y1 क्या है बेटा? y1 वैल्यू 2, y2 वैल्यू क्या है बेटा? y2 -8 हाँ, -8 प्लस 2, what will be my answer? -10 अरे -6 -6 अपॉन 2 -3। तो क्यू कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए। बोलो क्यू कोऑर्डिनेट, आई गेट द आंसर -2 and -3। माय फाइनल आंसर। कैसे लिखेंगे? रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। P and Q points are the trisection point of the segment AB। so बोलो, डायरेक्ट लिख देंगे। coordinates of P 0 and 2 and Q coordinate -2 and -3, which are
which are points of trisection of segment AB. सेगमेंट ए बी। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? ऐसे आंसर लिखना है। हेलो, सम लेंदी होते जाएगा। अभी दो सम है वो एकदम लेंदी है, 4 मार्क्स के ही आएंगे। 11th एंड 4th सम, 12th 11th एंड 12th वन 4 मार्क्स के लिए ही आएंगे सम। सो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया पहले वो बताओ, तो ही वो 11th और 12th आएगा। ठीक है, check it. You want time to go through it? Tell me. Yes. पहले है ना पी कोऑर्डिनेट फाइंड करो सेक्शन फॉर्मूला से, देन मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? टेक 2 minutes. Any question arising in your mind? Tell me. You want explanation again? Then also tell me. Yes. कुछ बोलना है? Anyone? Anyone to speak something about this term? No. Can we start 11th one sum? Yes, sir. किसको कुछ बोलना है? नहीं बोलना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। रीड द क्वेश्चन twice and then start. If a coordinate and b coordinate we have, find the coordinate of the point which divide the segment AB into 4 equal parts. Last question में क्या था? 3 equal parts. Here we have a 4 equal parts. So we have to take a 3 point between AB. Yes? ये याद रखना है। अच्छी तरह याद हो गया? नो प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन नंबर 11। Yes, we have a 2-point AB. Its coordinate -14 and -10. ठीक है, here we have -6 and -2. Yes, I am taking, let points
P, Q, and R are the point between points on segment AB, points on segment AB segment AB, okay, which divide segment in 4 equal part. ओके, मैं 4 पॉइंट्स ले लेता हूं, देखो, ओके, फर्स्ट 4 इक्वल पार्ट, 1 मिनट, थोड़ा हम दूर ले गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, चलेगा, 4 इक्वल पार्ट, चलो इक्वल पार्ट हो गए ऐसे हमने, ये बेटा कंस्ट्रक्शन नहीं है कि हम इक्वल मेजरमेंट से लेंगे, हियर वी हैव अ P, Q and R. I want the coordinate of these 3 point. कैसे फाइंड करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RB. Yes, अभी AP upon PB is equal to 1/3. Am I right? बेटा आपको समझ में आ रहा है, AP is a 1 part and PB is a 3 part, total 4 parts. I'm going very slow, huh? I'm giving the time for thinking to you. Yes, is equal to M upon N is equal to M is equal to 1 and N is equal to 3. बोलो ये समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? Let P point X and Y A -14 and -10 X1 Y1 B coordinate we have a 6 and -2 X2 Y2. बोलो समझ में आ रहा है आपको क्या नहीं आ रहा है? इतना तो ही मैं आगे बढ़ूंगा. Yes. अरे बेटा टाइम दो, 1 मिनट दो तो इसको देखने के लिए. उड़ीता, अंतरा बोल. ठीक है, नो प्रॉब्लम. हैव यू अंडरस्टूड अप टिल नाउ? समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? कैन वी स्टार्ट? अभी क्या लिखना है? सेक्शन फॉर्मूला.
help me section formula. ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में क्या है बोलो? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो समझ में आ रहा है आपको क्या नहीं आ रहा है? यस, आज ही हमने सेक्शन फॉर्मूला किए हैं। y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1। बस ये हमारे लास्ट फॉर्मूला है, ये आ गए तो हमारा ये चैप्टर खत्म, मतलब यस सर। ठीक है। चलो बोलो x वैल्यू, आई डोंट नो। m वैल्यू बोलो, m वैल्यू 1, x2 वैल्यू 6, n वैल्यू 3, x1 वैल्यू -14 अपॉन 1 प्लस 3। बेटा समझ रहे हो कि नहीं? वैल्यूज एक भी गलत कर दिए आंसर नहीं आने वाला है, रॉन्ग। पे प्रॉपर अटेंशन हियर। यस, ओके। x इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 14 3 जा 42, am I right? अपॉन 4, सो 6 माइनस 42 क्या आंसर आ रहा है? -36। क्या आंसर आएगा? -36 अपॉन 4, we have a -9। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? ये x कोऑर्डिनेट आ गया मुझे। नाउ y कोऑर्डिनेट, देखो बेटा ये x कोऑर्डिनेट आ गया, अभी y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। चलो m वैल्यू वी हैव, a 1, y2 value we have a -2, n value we have a 3, y1 value we have a -10 अपॉन 1 प्लस 4। बेटा देख रहे हो कि नहीं आप? अच्छी तरह समझ रहे हो कि नहीं? 2 1 जा 2, -30 अपॉन, यहां क्या लिखना था? 3। यस, यहां 4, -32 अपॉन 4। बोलो क्या आंसर आ रहा है? बोलो -8। So this is my first answer of p coordinate. P coordinate -9 and -8, answer 1। ठीक है, I am writing here, कहाँ गया बेटा ये? हाँ, I am writing here p coordinate जो हमने फाइंड किया है ना, I am writing here -9 -8, जो क्वेश्चन मार्क था ना मुझे मिल गया। ठीक है, हेलो, ये मेथड है, नहीं तो फिर आप है ना मिस्टेक करते रहोगे। बड़ा सम है, कैसे करना है। ठीक है, नाउ P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। मैं क्या लिख रहा हूं देखो, अभी 2 पार्ट है, इक्वल पार्ट। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। सेकेंड पार्ट आई एम राइटिंग, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या लिखोगे बोलो? दिस इज सेकेंड पार्ट। बोलो, जो मैंने फाइंड किया है, P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए क्यू। चलो, तो P कोऑर्डिनेट क्या है? हमने हमारे पास है बेटा, P इज द मिड पॉइंट, -9
-8. आई एम गिविंग द नेम x एंड y. जो भी मिड पॉइंट रहता है उसको मैं x और y देता हूं. a कोऑर्डिनेट या लेट लिख देते हैं वापस. a कोऑर्डिनेट वी हैव. बोलो a कोऑर्डिनेट क्या है? -14 -10. उसको नाम दे दिया बेटा x1 y1. q कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है. बोलो क्वेश्चन मार्क. फाइंड करना है x2 y2. बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? वापस डायग्राम देखना है आपको. यू वांट टू गो टू द डायग्राम once again. हेलो स्टूडेंट, डायग्राम देखना है कि नहीं देखना है? देखो डायग्राम. यस, मैंने क्या लिखे? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ. मुझे Q मिल जाएगा अभी, देखो थोड़ी देर में. आई गेट द Q पॉइंट. चलो क्या लिखेंगे बोलो? एस पर. कौन बोलेगा? बोलो एस पर मिड पॉइंट. हु कैन हेल्प मी नाउ? ये ए. हाँ नहीं तो कुछ भी लिख दोगे. बोलो x is equal to x1 plus x2 upon 2. Y is equal to y1 plus y2 upon 2. चलो अभी मुझे हेल्प करो. आगे नहीं जाना, इतने में से मैंने देखो वापस लिख दिए सब. बोलो x वैल्यू भी है -9, x1 वैल्यू -14, x2 I don't know upon 2. -9 into 2 is equal to -14 plus x2. ठीक है. -18 plus 14, we have a x2. 18 minus 14, we have -4. बोलो q कोऑर्डिनेट x2 मिल गया. फर्स्ट कोऑर्डिनेट -4. बेटा रीजॉइन नहीं हो रहे स्टूडेंट. नहीं आता है उन लोग को रीजॉइन होने को. यस, दे डोंट नो वंस दे लेफ्ट. चलो अभी y कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे. y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? y कोऑर्डिनेट है मेरे पास -8. y का जो p का y कोऑर्डिनेट क्या है? -8. y1 वैल्यू भी है वह -10. y2 वैल्यू आई डोंट नो अपॉन 2. -8 into 2 is equal to -10 plus y2. -16 plus 10 is equal to y2. 16 minus 10 we have a -6 is equal to y2. तो मुझे क्या मिल गया बेटा? यहाँ पे q कोऑर्डिनेट मिल गया. q कोऑर्डिनेट we have -4 and -6. This is my answer. सेकेंड. q कोऑर्डिनेट भी मिल गए. यहाँ पे लिख देता हूं -4 एंड -6. ये जो क्वेश्चन मार्क था -4 -6, आपको ये मैं अलग अलग पेन से क्यों लिख रहा हूं बेटा? व्हेन यू राइट एट होम नो यू कैन अंडरस्टैंड. चलो अभी बोलोगे. अभी R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB. लास्ट पार्ट आया है. R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB. बोलो नेक्स्ट पार्ट लास्ट है. ये सम खत्म होने के लिए क्या लिखेंगे? बोलो पॉइंट R is
Jatan is not there. R is midpoint of segment. बोलो segment. वापस डायग्राम देखना पड़ता है बेटा, लेंदी समय 4 मार्क ऐसे ही नहीं मिलेंगे. QB, बोलो QB, segment QB. Let R पॉइंट क्या है बेटा, R पॉइंट फाइंड करना है हमको. Let R पॉइंट इज इक्वल टू XY. जो भी मिड पॉइंट है ना उसको XY देना है. Q पॉइंट वी हैव -4 -6, इसको नाम दिए X1 Y1. B पॉइंट वी हैव 6 and -2. बेटा लास्ट पॉइंट है X2 Y2. हेल्प मी, बोलो मिड पॉइंट फॉर्मूला, हेल्प मी. कैन यू हेल्प मी? मिड पॉइंट फॉर्मूला. X is equal to X1 plus X2 upon 2. Y is equal to Y1 plus Y2 upon 2. ठीक है, समझे बेटा, समझे कि नहीं? बोलो क्या लिखोगे? यस. X वैल्यू क्या है बेटा? X वैल्यू नहीं पता है. राइट एज इट इज. X1 वैल्यू -4, X2 वैल्यू 6 upon 2. 2 upon 2. Answer is 1. Answer is 1. चलो नेक्स्ट. हियर y कोऑर्डिनेट. समझ रहे हो कि नहीं? इजी है, इजी. लेंदी है बट. बोलो y1 वैल्यू वी हैव -6, y2 वैल्यू वी हैव -2 अपॉन 2, -8 अपॉन 2 वी हैव -4. तो मुझे 1 and -4 आंसर आ गया. कौन से कोऑर्डिनेट का आ गया? बोलो r कोऑर्डिनेट. 1 and -4. आंसर 3. माय फाइनल आंसर. बोलो coordinates of the point which divide the segment AB into 4 equal parts are. क्या लिखोगे? बोलो आंसर. वापस लिखना है. Coordinates of the point, coordinates of the points which divide segment AB in 4 equal parts are. इक्वल पार्ट्स आर. पहले क्या लिखोगे? P कोऑर्डिनेट, Q कोऑर्डिनेट एंड R कोऑर्डिनेट. ठीक है, R कोऑर्डिनेट 1 and -4. Q कोऑर्डिनेट क्या थे? क्या थे Q कोऑर्डिनेट? -4 and -6. एंड P कोऑर्डिनेट हमने फर्स्ट फाइंड किए थे -9 and -8. -9 -8. बोलो समझ में आए कि नहीं आए? कितना बड़ा सम है देखो. यस, 4 मार्क्स के लिए है, मैंने बताया.
दिस इज 11th सम। अभी 12th सम भी हम करके करेंगे, हमारा एक सम के लिए पूरा लेक्चर नहीं जाना चाहिए। यस, if no one is there then I will complete this sum। ठीक है, 12th one, can we start 12th sum? हेलो चैतन्य, समझ रहे हो? सज्जा खान, हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ठीक है ना बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस करो। हाँ बेटा, 10th है, प्रैक्टिस करो। एक भी सम में होमवर्क नहीं देता हूँ, रिलेटेड सम भी हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट 12th वन, अभी मैं इसमें कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, आपको नहीं समझेगा तो आप मुझे बोलो। ये भी लेंथी सम है बट आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। यस और नो? इजी है ना, सेम मेथड से जाना है। मुझे ऐसा लगेगा आपको नहीं समझ रहा है तो मैं बोलूंगा, नो प्रॉब्लम। और आपको ऐसा लगे नहीं समझ रहे तो आप बोलो कि सर ये नहीं समझे। 12th वन, last sum of this chapter, pay attention properly। yes, we have a AB, सेम मेथड से जा रहा हूं। ये देखो AB, 5 इक्वल पार्ट्स। बोलो अभी क्या है? 5 इक्वल पार्ट्स। 5 इक्वल पार्ट्स तो 4 पॉइंट्स लेने हैं। 5 इक्वल पार्ट्स में कितने पॉइंट्स लेने हैं? ए 1 2 3 4। चलो, P Q R S, समझ में आ रहा है ना बेटा? हार्ड होते जा रहा है, आपको भी समझ में आ रहा रहेगा। कितनी बार करना पड़ेगा? लेट पॉइंट PQ, let point PQ, let point PQ divide PQRS। बोलो PQRS, PQRS divide segment AB in 5 equal parts। समझ में आ रहा है? ओके, अभी उसके कोऑर्डिनेट भी लिखने गर्दी हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं। चलो, ए पॉइंट क्या है बेटा? 20 and 10, and B point we have a 0 and 20। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ x1 y1, x2 y2। ठीक है, अभी AP इज अ 1 पार्ट एंड PB इज अ 4 पार्ट। कैसे लिखेंगे ध्यान दो, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू M अपॉन N, M इज इक्वल टू 1 एंड N इज इक्वल टू 4। बेटा समझ में आ रहा है? सेक्शन फॉर्मूला करना है। सज्जा खान, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. हाँ, अभी देखो 1 and 4 हो गया, बाय हार्ट मत करो। 3 इक्वल पार्ट टेक 2 पॉइंट, 4 इक्वल पार्ट टेक 3 पॉइंट, 5 इक्वल पार्ट टेक 4 पॉइंट। ये याद रखो, इजी हो जाएगा। चलो, P कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। P कोऑर्डिनेट x, y, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। आगे बढ़ेंगे,
चलो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सजिया खान बोलोगे, अभी वैल्यूज बोलोगे, हेल्प करो ना मुझे। यस, कैन यू हेल्प मी? यस, वी हैव अ वैल्यूज हियर। बोलो x वैल्यू, आई डोंट नो, बोलिए। m वैल्यू, फटाफट बोलो बेटा, फटाफट बोलो। यस, देख के बोलना है बेटा, यहां से वैल्यू बोलो। 1, x2 वैल्यू 0, n वैल्यू 4, x1 वैल्यू 20 अपॉन 1 प्लस 4। ठीक है, 1 इंटू 0 0, 4 इंटू 20 80, 80 अपॉन 5, बोलो 80 अपॉन 5, 4 प्लस 1 कितना आ गया? 80 upon 5, we have a 16। सज्जिया खान समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? Yes, sir. हाँ यार, ध्यान रखो बेटा, स्टूडेंट हमारे पास ऐसे है ना बेटा, वापस ज्वाइन ही नहीं हो रहे, दैट इज अ बिग लॉस। यस, चलो बोलो, व्हाट कैन आई डू? y इज इक्वल टू m, क्या है बेटा? m 1, y2 बेटा, y2 बोलो 20, n 4, y1 10, 1 plus 4, yes, y 20 plus 40, 4 tens are 40 upon 5, 60 upon 5। बोलो क्या आंसर आएगा बेटा? y इज इक्वल टू 12। इजी है। Yes, चलो sir. मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट मिल गया बेटा? मुझे पहले p कोऑर्डिनेट मिला। आई एम राइटिंग हियर p कोऑर्डिनेट। ओके, p कोऑर्डिनेट 16 and 12। चलो दिस इज माय आंसर 1। आई एम राइटिंग here also in diagram so that you can understand पहले क्या फाइंड किया था। yes, p coordinate 16 and 12 क्वेश्चन मार्क। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मैं लिखूंगा p is the midpoint of aq। अभी सब मिड पॉइंट 3 टाइम मिड पॉइंट करूंगा तो खत्म हो जाएगा। चलो p is the, बोलो midpoint of aq, सेकेंड पार्ट, p is the point p is midpoint of segment AQ। बराबर है। चलो P पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा? P पॉइंट मेरे पास है XY 16, जो भी मिड पॉइंट है उसे X और Y देना है। A पॉइंट क्या है बेटा? A पॉइंट 10 and 20, X1 Y1। वापस क्यों लिख रहा हूं? हमको डायग्राम में नहीं जाना पड़े। Q कोऑर्डिनेट we have X2 Y2 क्वेश्चन मार्क। बेटा समझ में आ रहा है? मिड पॉइंट फॉर्मूला करेंगे अभी? बोलो, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। यस, x1 plus x2 upon 2, y is equal to y1 plus y2 upon 2। बोलो बेटा वैल्यू बोलो अभी। x वैल्यू 16,
यस 16, x1 वैल्यू 16 हो गया. ओके, is equal to x1 value we have a 10, x2 I don't know, upon 2. 16 2s are 32. minus 10, x2. Am I right? Yes. बोलो. Yes. Yes. समझ में आ रहा है. पहले क्या आया था बेटा आंसर? 16 and 12. ये मुझे क्या मिले? वापस एक बार चेक कर लेंगे. x है 16. ओके, x1 10, x2 I don't know, upon 2. 16 2s are 20 आएगा. 26 32. और 32 minus 10 क्या आ जाएगा बोलो? मुझे क्यू कोऑर्डिनेट चाहिए. 22. 22 आ रहा है, पर हमने कहा कुछ गलत नहीं किया ना. वापस एक बार देख लेंगे. कौन सा है बेटा? पी पॉइंट है. मिड पॉइंट क्या है? वापस एक बार देख लेंगे. यस, हाँ 16 एंड 12 हमारा आंसर था. ओके, हाँ. ए कोऑर्डिनेट क्या है? 20 एंड 10. 20 प्लस 0. मैंने ये रॉन्ग लिखा है. 20 और 10 यहाँ रॉन्ग लिखा है भाई, है ना? बोलो क्या लिखना है बेटा? समझे आप कहाँ रॉन्ग लिखे? 10. वापस बोल दो बेटा, वापस बोल दो. यहाँ क्या लिखना है? 20. कहीं जाना नहीं, ये सब हमको खत्म करना है. टाइम होने दो. ऐसे चलेगा ना? हेलो, 20 Yes, sir. चलेगा ना? ये पूरा लेक्चर Yes, हमारा, sir. नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत प्रॉब्लम होगा. यस, ये 20, कोई बात नहीं. हाँ, 32 minus 20 करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है बोलो? हेलो, आ जाएगा आंसर हमारा. खाली एक मिस्टेक हुआ, पर हमको जल्दी से मिस्टेक मिल जाता है. बोलो कितना आंसर आएगा अभी? 12. 12. ओके, अभी यहाँ पे मुझे जल्दी जल्दी बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ. y वैल्यू क्या है बेटा? 12 है. 12. ओके, y1 10, 10. y2 आई डोंट नो, Question. अपॉन 2. बोलो 12 into 2 कितना हो जाएगा? 24. 24 minus 10 कितना हो जाएगा? 24 minus 10 कितना हो जाएगा बोलो? बोलो क्या आया बेटा? 14. कौन सा कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे? क्यू कोऑर्डिनेट. बोलो क्या मिल गया? Q coordinate. 12 and 14. This is my answer. आंसर सेकंड. वहां पे लिख दो ग्रीन पेन से क्यू कोऑर्डिनेट. हेलो, Yes, sir. हाँ मिस्टेक नहीं होगा इसलिए बेटा, दूसरा कुछ नहीं है. क्या लिखना है बोलो? आंसर क्या आया था? 12 and 14. 12 and 14. ओके, 12 and 14, नो प्रॉब्लम. चलो इसको भी क्वेश्चन मार्क था. अभी मैं लिखू Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर. Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर. चलो बोलो. थर्ड पार्ट, पॉइंट Q. Q is the midpoint point of QR. राइट है? वापस एक बार देख लेंगे, मिस्टेक नहीं है ना कहाँ पे? वैल्यूज बोल. हाँ, Q is the midpoint of PR. Q is the midpoint of PR.
चलो अभी मुझे क्यू मिड पॉइंट है तो उसको मैं एक्स और वाई दे दूं, 12 एंड 14 को क्या दे दूं, एक्स वाई। चलो पी पॉइंट, बेटा पी पॉइंट हमारा क्या है, x1 y1, आर पॉइंट x2 y2, आर पॉइंट x2 y2। चलो बोलो पी पॉइंट क्या है। हाँ डायग्राम में ही देख लेंगे हम। 16 एंड 12, 16 12 12 14, 16 12 12 14, बोलो बराबर है। चलो हेल्प करोगे अभी, जल्दी जल्दी बोलो। यस, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। बोलो यहाँ पे 12 लिख दूं, यहाँ पे 14 लिख दूं। x1 वैल्यू वी हैव अ 16, x2 आई डोंट नो। समझ में आ रहा है ना। y1 वैल्यू वी हैव अ 12, y2 अपॉन 2, 12 into 2 is equal to 16 plus x2, 24 minus 16, क्या आंसर आएगा बोलो। यू आर देयर और नॉट बेटा। हाँ 8। ओके अभी यहाँ पे बोलो 14 into 2, 12 plus y2, 28 minus 12, क्या आंसर आएगा बोलो, 16। राइट है। कौन सा कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे बोलो, कौन सा कोऑर्डिनेट मिल गया हियर, वी हैव अ आर कोऑर्डिनेट। बोलो आर कोऑर्डिनेट क्या है, 8 एंड 16, आंसर। अभी लास्ट है 8 एंड 16, यहाँ पे लिख देता हूं 8 एंड 16। अभी फाइनल स्टेप बोलो, फाइनल स्टेप। S is the midpoint of RB, बोलो S is the midpoint of RB, S is the midpoint of RB। पे अटेंशन, लास्ट। समझ में आ रहा है ना। पॉइंट S is the midpoint of segment RB। चलो बोलो S मिड पॉइंट है तो हम S ऐसे लिख देंगे, X एंड Y, R पॉइंट 8 एंड 16, X1 Y1, B point we have a 0 and 20। बोलो समझ रहे हो। X2 Y2 लास्ट पॉइंट है। यस बोलो अभी सेक्शन फॉर्मूला, अरे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके लास्ट स्टेप है बेटा एस पॉइंट के लिए, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, 8 प्लस 0 अपॉन 2, क्या आंसर आएगा बोलते जाओ बोलते जाओ। 8 अपॉन 2, माय आंसर इज 4. 4। बेटा एग्जाम में आएगा तो ये सम आप सॉल्व करोगे ना, या नहीं करोगे। Yes, sir. हाँ अभी y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2, y1 प्लस y2
अपॉन 2 क्या है बेटा, y1 क्या है 16 प्लस 16 plus 20 अपॉन on 2 2. 32 अपॉन 2। क्या आंसर आए, 32 आ रहे कि 36? बोलो यस 18। 36. ओके, तो क्या आंसर आए बेटा ये एस पॉइंट पे 4 एंड 18। चलो अभी लास्ट आंसर लिखा दोगे मुझे, बोलो आंसर, ऐसे लिख देंगे हम आंसर चलेंगे। बोलो पी पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू पॉइंट क्या है, आर पॉइंट क्या है, एस पॉइंट क्या है, ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके Yes. चलो पी पॉइंट के क्या है बेटा 16 एंड 12, चेक कर लो। क्यू पॉइंट के 12 एंड 14, 12 and 14. आर पॉइंट के 8 एंड 16 और एस पॉइंट के 4 और 4 18। and 18. बोलो बराबर है, आप लिख सकते हो ना आंसर। Yes, sir. हाँ 5 इक्वल पार्ट पी क्यू आर एस आर द पॉइंट डिवाइडिंग द सेगमेंट ए बी इन 5 इक्वल पार्ट्स, ऐसे ऐसे लिख सकते हो ना। Yes, बोलो sir. हाँ, कैसा लगा ये सम बेटा, इससे हार्ड सम नहीं है अभी कोई, ये ही हमारा हार्ड से हार्ड सम, और वो भी हमने इजी मेथड से कर दिए। ओके वी स्टॉप हियर, यस वी स्टॉप हियर, लेक्चर एंड। कुछ बोलना है तो मुझे पूछ सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके लेक्चर एंड। Bye, sir. Thank you, sir. ओके